तो आज जो है बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड जीडीपी। बहुत नॉर्मल टॉपिक है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे बनेगा और मैं पूछूंगा भी। तो क्वेश्चन सोच समझ के अच्छे से देना है। हाँ, और थोड़ा आवाज़ को मेंटेन रखिएगा। तो जैसे पहले मैं कुछ जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। बेसिकली आप मेरे को ये बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी? GDP is the total monetary value of goods and service which is produced in the country in a particular year in a particular territory. टेरिटरी? Or in a particular geographical area. अच्छा, so why are intermediate goods excluded from GDP calculation? In order to reduce the cascading effect and to come up with the more precise and exact data, because the intermediate goods will be counted double times in order to avoid double count. Example? For example, there is to make the biscuit, we will first have wheat. So we will count wheat in our production. Then we will count if we will convert the wheat into the flour. So we will count the flour as also the production, and ultimately after it we will make it and we will make the biscuit. So we will count the biscuit also in the GDP. This will be like double counting the product. So that's why we just count the final product in which the cost of the intermediate goods are already included. बेसिकली कि हम जो है ना डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए जो है ना इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी जो है ना फाइनल आउटपुट में काउंट की जाएगी। व्हाट आर ट्रांसफ़र पेमेंट एंड हाउ आर दे ट्रीटेड इन जीडीपी? Transfer payments are something in which in exchange of with the service or the service is not done, and transfer payment are not accounted in the calculation of the GDP. Why? Because it is one-way transactions. If, for example, if government is providing pensions, subsidies, scholarships, so in return the beneficiary is not giving any service. So that's why it is excluded. अच्छा, तो ये बताइए कि रेमिटेंस और ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या डिफरेंस है? Both are remittance are also the same, and that is also not included in the capital account of our balance of payment, because in the written remittances also are some amount which is sent to the country, but in return of that the beneficiary is not providing some job in exchange of that remittance amount. It is just one-way transaction, so both are similar at times in the function with respect to the functional aspect of the both concepts. So remittance are included in national income? Remittances are included in national income. National income includes net national product. So it is not included in it. And transfer payment? Not It is also not included. it is not included in the convention. What condition must a year satisfy to be chosen as a base year? So there must be some criteria. There are some certain criteria. First is that year should be normal year, and it should not be like some extraordinary year which will be war or situation like COVID-19. So that is something. There should be basically a normal year, not an extraordinary. 3 कंडीशन बताइए मेरे को। चूँकि अभी इंडिया का बेस ईयर चेंज किया गया जीडीपी का 2012 से क्या किया गया है?
22 किया गया है 24, और CPI क्या किया गया है? 22, सही बोल रहे हैं कि उल्टा बोल रहे हैं आप? GDP का बेस ईयर क्या चेंज है, 24 की 22 है, 22-23 है? बताइए बताइए, यही इन्फॉर्मेशन दिक्कत करेगा बाद में फिर। सर्च कीजिए सर्च कीजिए। हम्म GDP का बेस ईयर क्या चेंज हुआ है कि 22-23 की 24 है? GDP का 2022-23, हाँ, आप उल्टा बोल रहे थे, बता समझ रहा था मैं। आप 24 बोल रहे थे GDP का, वो CPI का है 24, CPI का। यही गलती करते हैं लोग। अब चूंकि GDP का बेस ईयर चेंज हुआ है तो इस बार पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 चीज़ मैटर करता है, हम किसी भी ईयर को बेस ईयर मानते हैं, 3 चीज़ मैटर करता है। फर्स्ट चीज़ है कि वो ईयर रिसेंट का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है ना, उस ईयर के लिए रिलायबल डाटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस ईयर से हमारे पास कोई डाटा ही ना हो। और तीसरी चीज़ जो आप बता रहे थे, नॉर्मल इकोनॉमिक ईयर होना चाहिए, कोई मतलब जो है इसमें है ना, मतलब जो है ना फ्लक्चुएसन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ जो है ना पक्का पूछा जाएगा। धारण की चूँकि बेस ईयर अभी रिसेंट में चेंज हुआ है, पूछा जा सकता है कि आप बताइए क्या आपके पास कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, डिफरेंस बिटवीन मतलब recent होना चाहिए, क्या फर्स्ट एक recent year होना चाहिए, सेकंड एक normal year होना चाहिए, और थर्ड उसका data थर्ड के बैक्ड बाय रिलायबल प्राइस डाटा, बैक्ड बाय रिलायबल प्राइस डाटा, मतलब कि जो ईयर है हमारे पास उसका रिलायबल डाटा होना चाहिए बेसिकली। पता चला कि उस ईयर का रिलायबल डाटा ही नहीं है बेसिकली। तो 3 चीज़ जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी ईयर को बेस ईयर मानना है। तो नॉर्मल ईयर सबको पता है कि जो चीज़ नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन 2 चीज़ नहीं पता, रिसेंट का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं है, और दूसरी बात क्या है ना कि रिलायबल प्राइस डाटा होना चाहिए उस ईयर का बेसिकली। 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर तो है कि डिफरेंस बिटवीन फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, बेसिक डिफरेंस। factor cost is the cost which we will count at the production means after a product comes out from the factory, and then we add indirect taxes, and when we minus the indirect taxes and add subsidies, it comes out to be the market. ये बताइए कि हमको निकालना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो बताइए फार्मूला क्या होगा? Factor cost से मार्केट प्राइस निकालना है। locate हाँ जी बताइए। factor cost over compare market rate हम्म minus indirect taxes और plus market rate में रहता है। हेलो, कहाँ फंस गए आप? मैं बता रही हूँ कि आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। मतलब when we will add factor cost, in which factor cost we will minus indirect taxes plus we will add subsidies, so we will reach at market price. फैक्टर कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, Plus subsidies. तो इससे क्या मतलब जो है ना, इससे क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस है। Market price. गलत गलत, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, उल्टा बोल रहे हैं आप। आई रिपीट, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हाँ, चूँकि फैक्टर कॉस्ट में तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा ना जी, तब ना बनेगा मार्केट प्राइस। कॉमन सेंस की बात है। अरे भाई, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया। अब उसमें जब इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तब ना बनेगा हमारा रिटेल प्राइस है। मार्केट प्राइस मतलब रिटेल प्राइस, सिंपल समझिए। मार्केट प्राइस मतलब रिटेल प्राइस है, और फैक्टर कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, सिंपल सा रखिए। तो जब फैक्टर कॉस्ट में आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे ना कि माइनस करेंगे, और सब्सिडी को माइनस करेंगे। हाँ,
ध्यान रखना, टैक्स और सब्सिडी एक साथ कभी प्लस नहीं होता है। यदि एक चीज़ माइनस हो रहा है तो दूसरी चीज़ प्लस होगा। ये बात लिख लीजिए अपने डायरी में, यही है बेसिक डिफरेंस। तो ये बताइए कि फिर बेसिक प्राइस में क्या डिफरेंस है, बेसिक प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? Basic price में we add product प्रोडक्ट नो, production. देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे छोटा होता है फैक्टर कॉस्ट, सबसे छोटा होता है फैक्टर कॉस्ट जो केवल प्रोडक्शन कॉस्ट को देखता है। टैक्स का किसी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्शन में भी तो टैक्स लग सकता है ना। जैसे मान हमको चेयर बनाना है तो लकड़ी जहाँ से लाए होंगे तो वहाँ टैक्स तो दिए होंगे ना। तो उन्होंने मतलब कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर देंगे और प्रोडक्शन सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो बन जाता है बेसिक प्राइस, और उसी बेसिक प्राइस में जब हम प्रोडक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मार्केट प्राइस। ये बेसिकली मतलब कि प्रोडक्शन और प्रोडक्ट ये तभी बढ़ाएगा पिक्चर में जब बेसिक प्राइस यूज होगा। नहीं, अगर फैक्टर कॉस्ट से डायरेक्ट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम डायरेक्ट उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स एक क्वेश्चन पूछना जो कि मुझसे पूछा गया था मैं को पहले ही बताया था कि मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ पहले मैं जी क्वेश्चन मतलब पूछ। देखो, हाँ फाइनली ये हुआ कि मतलब जैसे जो बेसिक प्राइस है तो उसमें हम लोग पहले फैक्टर कॉस्ट, उसमें प्रोडक्शन टैक्स प्लस करेंगे और माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी करेंगे तो बेसिक प्राइस आ जाएगा। फिर बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्स प्लस माइनस प्रोडक्शन हाँ। सब्सिडी करेंगे तो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस आ जाएगा। लेकिन जब फैक्टर कॉस्ट से डायरेक्ट हमको निकालना है मार्केट प्राइस तो फिर जो है प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर केवल इनडायरेक्ट टैक्स होगा प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इधर रखिएगा, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। हाँ इसी तरह रखिए, मतलब आपको सिंपल से देखना, रिटेल प्राइस को ही मार्केट प्राइस बोला जाता है, यानी जो प्राइस कंज्यूमर को बेची जा रही है वही है मार्केट प्राइस, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वही है फैक्टर कॉस्ट है, और जो होल सेल प्राइस है ना उसी को बोलते हैं बेसिक प्राइस। यही है बेसिक डिफरेंस। हाँ ये मेरी स्टाइल याद करने का। हाउ डज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिफर फ्रॉम जीडीपी? Gross national product, gross national product sees the different, basically it measures the development in particular सिंपल sector सा बोलिए or ना overall. कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Abroad. सिंपल सा बोलिए, फार्मूला बताइए भाई, इंटरव्यू में क्या है ना फार्मूला वगैरह चलता है, ये आप एक्सप्लेन नहीं करना है और मेंस थोड़ी है, इसलिए बता दीजिए फार्मूला कि सर ये फार्मूला हो तो समझ जाएंगे भाई कि इसको निकालना आ जाएगा। और नेट फैक्टर इनकम फॉर अब्रॉड होता क्या है? नेट डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द फॉरेन रेजिडेंट डोमेस्टिकली, बेसिकली यही है। मतलब जो डोमेस्टिक रेजिडेंट है आउटसाइड के और जो फॉरेन रेजिडेंट है इंडिया के बाहर के लोग, तो उनके बीच का जो डिफरेंस निकाला जाएगा वही होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अंडर, ये अच्छा क्वेश्चन है, अंडर व्हाट इकोनॉमिक कंडीशन विल जीडीपी एक्सीड जीएनपी? GDP exceeds GNP. यस, That's where the economies, open economy, and that open economy. You are saying GDP will exceed GNP, right? So also it includes economy. This kind of situation will happen. Means when we are just नहीं, depending on the domestic ओपन इकोनॉमी में ही ऐसा होगा। अरे जी क्लोज इकोनॉमी में कैसे होगा जी? क्लोज इकोनॉमी में एफडीआई इंडिया में आएगा? नहीं आएगा। तो फिर ये बताइए जीएनपी कब एक्सीड कर, जीडीपी कब एक्सीड करेगा जीएनपी से? जब ओपन इकोनॉमी होगा और इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना बाहर का, वो इंडिया में ज़्यादा हो रहा है लेकिन इंडिया से इन्वेस्टमेंट बाहर के लिए कम हो रहा है, उसी को हो जाएगा ना जीडीपी ज़्यादा है और जीएनपी कम है। तो ऐसा कब होगा? ओपन इकोनॉमी होगा, चाहे कम हो या ज़्यादा, ये चीज़ हमेशा ओपन इकोनॉमी में ही पॉसिबल है। ये माइंड में सेट कर लीजिए। हाँ
आपको यहाँ पे क्लोज और इकोनॉमिक क्या फॉर एग्जाम्पल जो कोई देश के रेसिडेंट है वो बाहर नहीं जा रहा है, वो सिर्फ अपने कंट्री के विदिन में ही है और बाहर से तो भी कोई वो नहीं तो जा रहा है। तो उसको नेशनल बोला जाता है, उसको रेजिडेंट नहीं बोला जाता है। तो फिर जो है ना कंपेयर वाला मैटर ही नहीं उठेगा। फिर कंपेयर क्यों किया जा रहा है बताइए? ओपन इकोनॉमी का किया था ना कि क्लोज इकोनॉमी में हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कंपेयर कब करते हैं? जब कंट्री ओपन रहती है ना। जब आपसे कंपेयर करने के लिए बोला जाता है वो मतलब ओपन इकोनॉमी है, ये कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि जेएनपी में क्या होता है, नेशनल को एड किया था, मतलब कि हमारे इंडिया के बाहर लोग काम कर रहे हैं और बाहर के इंडिया में आके काम कर रहे हैं, उसका डिफरेंसेस निकाला जाता है, तो जेएनपी निकाला जाता है। तो ऐसा कब होगा? जब ओपन इकोनॉमी होगा। तो जब आपसे कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है कि जीडीपी जेएनपी से कब एक्सीड करेगा, तो मतलब वो कंपेयर मतलब ओपन इकोनॉमी की बात कर रहा है, मतलब ग्लोबलाइजेशन एरा की बात कर रहा है वो। कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं करना है, यही तो बता रहा हूँ आपको। व्हाट इज डिप्रिसिएशन इन नेशनल अकाउंटिंग? The wear and tear of the products. So when we minus GDP means gross domestic product minus BR एंड टीयर उसका रीजन है। डिप्रिसिएशन इसको नहीं बोलते। डिप्रिसिएशन इज द डिक्लाइन इन फिजिकल एसेट्स ड्यू टू BR एंड टीयर। डिप्रिसिएशन इज नॉट BR एंड टीयर। डिप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन फिजिकल एसेट्स ड्यू टू BR एंड टीयर ऑफ द एसेट्स। आप रीजन बता रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ क्या व्हाट इज डिप्रिसिएशन। तो ऐसी गलती नहीं करना है। देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ डिप्रिसिएशन क्या है। तो डिक्लाइन इन फिजिकल एसेट्स ड्यू टू BR एंड टीयर। आप क्या बता रहे हैं? डिप्रिसिएशन इज DR एंड टीयर। तो ऐसी गलती नहीं करना है बेसिकली। यहाँ पे देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछेगा बताइए? क्या उसको नहीं पता कि आपको ये चीज़ पता है? वो चेक कर रहा है कि आप कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं। मतलब क्योंकि अभी आप जो है ना प्रीलिम्स मोड पे थे या फिर आप लिख रहे थे, लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गलती ना करिए, ऐसे गलती नहीं करना है। ये बताइए कि ये जो है ना, मान लीजिए हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है जीडीपी से, तो कैसे निकालेंगे? GDP minus depreciation, then it will give us net domestic product. मतलब कि डिप्रिसिएशन को नेट का मतलब ही होता है माइनस किया गया है कुछ ना कुछ है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोल रहा है बेसिकली। हाँ, व्हाई इज एनडीपी ऑलवेज लोअर देन जीडीपी? Because we are subtracting depreciation from the GDP, it comes out to be lower than. क्योंकि थोड़ा बहुत BR टीयर तो होगा ही ना है। अब जैसे मान लें कि आपने जो मोबाइल खरीदी है पिछले आपकी मोबाइल कब की है? हाँ, तो एक नई मोबाइल खरीद लीजिए। 22 मोबाइल 26 में यूज़ कर रहे हैं, अब 4 साल आपने यूज़ किया, तो मतलब BR टीयर तो हो गए थोड़ा बहुत ना। बड़े आप कितना भी अच्छा यूज़ करें भाई, BR टीयर तो होगा ही। तो मतलब जो है ना, तो इसलिए हमेशा होगा। जैसे मान लिया कुछ लोग बोलेंगे ऑलवेज बड़ लगाया, गलत होगा। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट पे पूछा गया है। एनडीपी की बात कर रहा है बेसिकली, तो एनडीपी में ये पॉसिबल है। हाँ, अगर ये भी बोलता है ना जीएनपी की कि जीएनपी जो ऑलवेज लोअर, तो ये गारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन एनडीपी हमेशा लोअर होगा जीडीपी से, ये फिक्स है। क्योंकि थोड़ा बहुत BR टीयर तो हो ही जाएगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, व्हाट इज़ द फॉर्मल इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का फॉर्मल इकोनॉमिक डेफिनेशन क्या है? हाँ, यहाँ पे फंसेंगे आप, बताइए। National income is NNP, ex sector cost. एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोल सकते हैं कि और कुछ ऐड करना पड़ेगा? उसमें NNP ex sector cost minus indirect taxes plus subsidies. नहीं, फैक्टर कॉस्ट जब बोल रहे हैं ना, तो मतलब उसका मतलब वही है कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हुआ है और सब्सिडी प्लस हुई है जी। इसमें ऐड करने की क्या ज़रूरत है? बस यही है इसका फार्मूला। नेशनल इनकम इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ध्यान रखिए, कभी कभी क्या है ना, आपको फंसाने का ट्राई करेंगे वो। आप कुछ आंसर बताएंगे तो बोलेंगे कि आर यू श्योर अबाउट दैट, तो आपको इसका मतलब नहीं कि आपको आंसर चेंज करना है। यदि आपको लगता है कि मैं सही हूँ फर्स्ट इंस्टांस में, तो सेकंड स्टांस में आपको नहीं बोलना। क्योंकि ऐसे मैंने कई इंटरव्यू देखा है ना, जो जैसे मान लीजिए कि अभी इसका दिख रहा था मैं किसी दिन, इशिता किशोर का,
तो क्या है ना कि उससे क्वेश्चन पूछा गया, वो सही बताए, लेकिन उसको ऐसा फंसाया गया ना, उसने अपना आंसर चेंज किया। तो उसको फिर फीडबैक में बोला कि नहीं, यदि आप श्योर हैं तो आपको बताया कि नहीं सर ऐसा ही है बेसिकली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जा मुझसे क्या यही है, कुछ और ऐड करना है तो आप ये चेंज किए, इसका मतलब कि आप श्योर नहीं हैं। तो ये जो है ना ठीक मैसेज नहीं जाता फिर उसको इंटरव्यूअर को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आपको लगता है कि मैं डाउट में हूँ तब फिर बोल सकते सर आई थिंक आई एम नॉट श्योर, ऐसा बोल सकते हैं आप। लेकिन जब आपको लगता है कि मैं श्योर हूँ तो फिर चेंज नहीं करना है उनकी वजह से। हाँ ना, कि मतलब उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना कि हाँ उनको लगे कि मतलब जो इसको अपने यहाँ पे विश्वास ही नहीं है जो है ना, इसलिए। हाँ, यदि आप श्योर नहीं हैं तो आप पोलाइटली मना कर सकते हैं सर आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट मे बी लाइक दैट बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन जिसमें श्योर है उसमें जो है ना आप पलटवार मत कीजिए कि हाँ सर ऐसा हो सकता है जो आप बोल रहे हैं, वो फंसाने का ट्राई कर रहा है बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे आपको किया है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ही होता है कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस है और सब्सिडी ऐड है, आप उसमें बता रहे हैं कि उसमें प्लस होगा ये। तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड? Capital income is total national income upon total population. टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, क्या सही है ये? कुछ ऐड होगा? ऐड होगा। हमेशा नहीं सोचना है कि हमेशा वो आपसे गलत ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐड होगा। आप क्या बताए हैं? टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, गलत है ये। टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल रेजिडेंट पॉपुलेशन। हाँ, उस समय क्योंकि टोटल पॉपुलेशन जानते क्या है कि बहुत सब्जेक्टिव टर्म है ना। टोटल पॉपुलेशन मतलब कि कौन से नेशनल की बात करें कि रेजिडेंट की, क्योंकि रेजिडेंट में फॉरेनर भी आ जाता है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उस समय जो है ना जो फॉरेनर है ना इंडिया में, उनकी भी इनकम जो है ना माइनस होगी टोटल नेशनल इनकम से। आप टोटल पॉपुलेशन केवल बोल रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन बहुत सब्जेक्टिव है, किस टोटल पॉपुलेशन, उसमें इंडिया इंक्लूडेड है कि नहीं है, फॉरेनर इंक्लूडेड है कि नहीं है। ये तो आप ऐसा बोल दीजिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। हाँ, मतलब कि एनएनपी ऑफ ए कंट्री बाय इट्स टोटल, मतलब कि किसी कंट्री का एनएनपी को उसके टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तब यहाँ पे आपको रेजिडेंट वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एनएनपी बोल दिया है, तो एनएनपी में ऑलरेडी जो है ना वो आ गया है बेसिकली। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कि टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल रेजिडेंट पॉपुलेशन, ये इसका टिपिकल फार्मूला है बेसिकली। बंद ऐसे वर्ड आपको कैच करेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए आपको उनको पता है भाई कि ये लड़की अगर मेंस लिखी है, मतलब जो है ना जो भी ये मेंस लिखा है, तो इसको तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, तो ऐसे कुछ क्यों पूछेगा वो चेक करेगा कि जो है ना कि इसको ये फैक्चुअल चीज़ें पता कि नहीं पता, रेजिडेंट क्या होता है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आसान है तो उसको हल्के में नहीं लेना है, वो बहुत सारी चीज़ चेक करते हैं कि आसान क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करता है बेसिकली। तो आपको उसी तरह से सब क्वेश्चन को डील करना है जैसे आप एड्रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि बढ़िया उसको जल्दी से एड्रेस कर दीजिए, आराम से एड्रेस कीजिए जो आपको आता है, मतलब जो है ना प्रॉपर से बेसिकली, गलती नहीं करना है। एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। Expenditure method includes consumption, फार्मूला बता दीजिए, बस हो गया। consumption, investment plus government spending plus export minus import. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बोल रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट बोल दीजिए, नेट एक्सपोर्ट बोल दीजिए, तो उसमें आ ही ना जाएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो मतलब जो एक्सपेंडिचर मेथड से जो है ना आपका बेसिकली क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ द हाउस होल्ड प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट बेसिकली। इन सबको सम कर देंगे तो जीडीपी आ जाएगा। इंडिया में कौन सा फॉलो होता है जीडीपी को? केवल एक्सपेंडिचर मेथड, कहीं कहीं इनकम भी फॉलो होता है, कहीं कहीं प्रोडक्शन भी फॉलो होता है, मतलब उससे सप्लीमेंट होता है। मेन यही है और उससे सप्लीमेंट होता है। तो आपको यदि आपको ऐसा आंसर देना है कि मेनली यही यूज होता है, तो उससे सप्लीमेंट होता है, मतलब वेरिफिकेशन के लिए कभी कभी। ध्यान रखिएगा। ये तो ये कि इनकम मेथड का इंडिया यूज क्यों नहीं करता जीडीपी का कैलकुलेट करने का? क्योंकि इंडिया में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, ये इसका बेसिक रीज़न है बेसिकली। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इंडिया में है बेसिकली। डाटा है ही नहीं है बेसिकली। टैक्स कितने लोग पे करते हैं इंडिया में बताइए, इनकम टैक्स
हैं, लेस देन 10% है रफली स्पीकिंग। तो क्या कैसे करेंगे बताइए? क्योंकि प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है, एक होता है लैंड का रेंट, एक होता है लेबर का वेज, एक होता है कैपिटल का इंटरेस्ट, और एक होता है बेसिकली ये इंटरप्राइज का प्रॉफिट है। तो RWIP, RIP रेस्ट इन पीस मैंने ऐसा याद रखा है, रेस्ट इन पीस W, रेस्ट इन पीस W है ना। रेंट लैंड से निकलेगा, एंड इंटरेस्ट कैपिटल से निकलेगा, और प्रॉफिट निकलेगा किससे, एंटरप्राइज से, और W तो बेच निकलेगा किससे, लेबर से। तो कभी कभी ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं इनकम मेथड में, आपको वहाँ भूलना नहीं है। RIPW, रेस्ट इन पीस W। हाउ डज अ प्रोडक्शन टैक्स डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टैक्स? Production tax is basically imposed during the production process. For example, tax on the electricity, and the product tax is based on the product per se. For example, on the sales tax or custom duty. So this is product tax. और प्रोडक्शन टैक्स एग्जाम्पल क्या है? Tax on electricity, that is production tax. नहीं नहीं नहीं, इतना मज़ा नहीं आ रहा है। देखिए प्रोडक्शन टैक्स का बताया तो मैंने ना कि जब फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को ऐड कर देंगे तो बेसिक प्राइस बन जाता है। प्रोडक्शन टैक्स का मतलब ही सिंपल सा होता है कि आपने कितना प्रोड्यूस किया, उससे मतलब ही नहीं है। आपने प्रोड्यूस किया है ना, आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताऊँ, लैंड रेवेन्यू, आपने दिल्ली में ज़मीन खरीद ली ना, ज़मीन चाहे जितनी खरीदे हों, आपको उसका रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ेगा। ये होता है प्रोडक्शन टैक्स, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन है, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स। लेकिन जो प्रोडक्ट टैक्स होता है ना, ये होता है पर यूनिट। आप प्रोड्यूस कितना किए हैं भाई, जैसे GST परफेक्ट एग्जांपल है प्रोडक्ट टैक्स का। एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्ट टैक्स, आपको ऐसे बताना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी देखिए किस में आएगा जी, प्रोडक्शन में आएगा कि प्रोडक्ट में आएगा? पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कैसे लगती है में टैक्स है, जितना आपका आता है बिजली बिल उतना लगता है ना, पर यूनिट लगता है ना जी, हैं पर यूनिट लगता है ना जी। जैसे आप AC चलाएंगे तो ज़्यादा आपका आएगा, अगर आप केवल कूलर हाँ बोलिए। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो भी बिजली का यूज हो रहा है तो प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज हो रहा है। नहीं, ऐसे आप मत ऐड कीजिए, वो तो फिर कास्केडिंग हो जाएगा जी। उस इलेक्ट्रिसिटी की बात ना मत कीजिए ना, वो तो उसको बनने फिर से आप इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा। आप समझे नहीं इसका मतलब, वो टैक्स नहीं है, वो प्रोडक्शन, वो फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। गलती कर दिया यार, वो फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा आप करेंगे भाई ना, फिर तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग ही फिट हो जाएगा भाई, कि हाँ इस चीज़ को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुई है, वो चीज़ वो हुई है, ऐसे काउंट नहीं किया जाएगा। वो साथ फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसको सिंपलीफाई करिए कि है ना कि आपका प्रोडक्शन कितना भी हुआ है, जो है ना आपको जो है ना एक बेसिक टैक्स देना हो। जैसे स्टैम्प रजिस्ट्रेशन हो गया मान लीजिए, है ना, आपने कोई ज़मीन खरीदी, उसका आप रजिस्ट्रेशन कराना है बेसिकली। ये है मतलब उससे यूनिट से मतलब नहीं रहता बेसिकली प्रोडक्शन टैक्स में, वो यूनिट से मतलब नहीं रहता है। आपने किया है वो काम, आपको देना पड़ेगा, यूनिट से मतलब नहीं है बेसिकली। What is the GDP deflator and why is it preferred over fixed basket? Deflator is the ratio between the nominal GDP upon the real GDP into 100. So this shows us that this adjusts the inflationary effect and gives us the real picture. It is preferred over the fixed basket because GDP data includes all the गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड करता है। सिंपल सा बोले ना कि GDP जो डिफ्लेटर है ना, गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड करता है। अरे ब्रॉडर होता है, लेकिन जो CPI है ना, ये भी गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूड करता है, पर क्या है नहीं, नैरो हो चुकी है, फिक्स है ना जी, उसमें लगा ही खुद ही फिक्स।
जैसे जैसे फिक्स मतलब किसकी यहाँ पे सीपीआई की बात हो रही है, तो सीपीआई जो है ना उसमें क्या होता है, उसमें नैरो होता है कि हाँ ये बास्केट है बेसिकली। लेकिन जो जीडीपी होता है एक लॉन्ग टर्म होता है, जो है ना एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसलिए क्या है ना कि उसको प्रीफर किया जाता है ओवर द सीपीआई बेसिकली जीडीपी डिफ्लेटर को। हाँ, लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर की एक कमी ये है कि ये फॉरेन गुड्स को इंक्लूड नहीं करता, लेकिन सीपीआई फॉरेन गुड्स को भी इंक्लूड कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये भी डिफरेंस है ये। What is the difference between personal income and personal disposable income? ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं आपको 4 चीज़ बताया था, नेशनल इनकम, प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इन चारों में रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है अभी 10 दिन पहले शायद। हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। पर्सनल इनकम मतलब कि टोटल जितनी भी अर्निंग हो रही है इंडिविजुअल्स की वो नहीं, ये बहुत सिंपल सा बता दिए आप। टोटल अर्निंग हो रही है, पर्सनल इनकम आ जाएगा? नहीं, मतलब जैसे कि क्योंकि जो आपकी अर्निंग नहीं हो रही है ना, उसमें वो भी इंक्लूड कर सकते हैं भाई। जैसे आपको किसी ने पैसा दे दिया ट्रांसफ़र पेमेंट, तो क्या पर्सनल इनकम में नहीं होगा? आप बोल रहे टोटल अर्निंग ऑफ द इंडिविजुअल्स, वही तो बोल रहा हूँ कि आपका जो देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए ध्यान से यार, आपको कन्फ्यूजन है, मैं समझ गया, अब क्लियर करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन जो है ना पसंद नहीं है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। नेशनल इनकम का मतलब सिंपल सा होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, पहले आपको बता दिया हूँ, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन ध्यान रखिए इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को एक्सक्लूड किया जाता है। हाँ, नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र पेमेंट को आपने तो बताया है अभी, ठीक है। अब चलते हैं प्राइवेट इनकम में। इसके बाद है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम जानते क्या है? इसमें कॉर्पोरेट बेनिफिट्स भी आते हैं बेसिकली। तो नेशनल इनकम में गवर्नमेंट इनकम को माइनस कर दो, है ना, और इसमें ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड करना पड़ेगा। देखिए नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं था। लेकिन अब नेशनल इनकम से हमको निकालना है प्राइवेट इनकम, तो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम माइनस गवर्नमेंट इनकम, और वही ट्रांसफ़र पेमेंट इसमें ऐड हो जाएगा, ये प्राइवेट इनकम। लेकिन ये पर्सनल इनकम नहीं है, ये प्राइवेट इनकम है। अब इसी प्राइवेट इनकम में आप जो है ना कॉर्पोरेट बेनिफिट हटा दो, मतलब जो है ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट बेनिफिट, जिसमें आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो भी तो टैक्स कटेगा ना अपना, वो कंपनी वाला, तो उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट बेनिफिट। अब निकलेगा पर्सनल इनकम बेसिकली। अब इस पर्सनल इनकम में यदि आप जो है ना अपना जो है ना टैक्स हटा देंगे, पर्सनल टैक्स हटा देंगे, तो उसे बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आपकी जो जेब में पैसा है ना, वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली। तो ये इन चारों में जो है ना बेसिक डिफरेंस है। ये चारों मैं आपको पहले भी बताया था ना कि आपको क्लियर नहीं हो रहा है अभी, इसको अच्छे से जो है ना क्लियर कर लीजिए। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, यहाँ तक कि यूपी पीसेस बहुत पूछता है इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में। हाँ, यूपी पीसेस का पीवाईक्यू देखिए, इस नेशनल इनकम के टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। जीडीपी, नेशनल इनकम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ है वो। व्हाट इज द पोटेंशियल आउटपुट एंड आउटपुट गैप? output gap means the difference between the देखिए पोटेंशियल का मतलब होता है मैक्सिमम कितना हम आउटपुट ला सकते हैं, और फिर आउटपुट गैप का मतलब होगा कि पोटेंशियल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। सिंपल सा है। देखिए डिफिनीशन में हमेशा नहीं जाना है। यदि मान लीजिए किसी चीज़ को आप फार्मूला से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ना, तो फार्मूला बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है। क्योंकि देखिए क्या है को आपकी वहाँ क्या है ना क्लैरिटी चेक कर रहे हैं केवल, ऐसा नहीं कि आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है ना क्लैरिटी ज़्यादा मैटर कर रहा है। आप सीधे बता दीजिए कि सर जो है ना पोटेंशियल आउटपुट मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, वो कितना कर सकता है। अब होता है आउटपुट गैप, तो गैप मतलब क्या है कि पोटेंशियल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट है, कि हमने सोचा कितना था और हमने पाया कितना, ये है। अब जैसे हमने सोचा था क्या कि हमारी 200 रैंक आएगी, आई है 800 रैंक है, तो मतलब जो आई है ना वो एक्चुअल हो गया, और जो हमने सोचा था वो 200 है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, वो गैप हो जाएगा बेसिकली, ये है। What is green GDP? green GDP is the monetary value of goods and services, wherein the which accounts for the environmental impact.
मतलब जब जीडीपी में हम जो है ना उस लॉस को हटा दें जो डिफोरेस्टेशन और क्लाइमेट इम्पैक्ट से आया है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की जीडीपी आई है, उसमें से हमने डिफोरेस्टेशन किया है, क्लाइमेट इम्पैक्ट डाला है 20 रुपये का, तो 80 रुपये जो है ना ग्रीन जीडीपी है। सिंपल सा बताना है, जीडीपी माइनस मॉनेटरी लॉस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट, उसे ही बोला जाएगा क्या, ग्रीन जीडीपी बेसिकली। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स का नाम सुने हैं? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसमें भूटान टॉप करता है, सुने नाम इसका? हाँ, तो इसके 4 पिलर बताइए कौन कौन से हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ये। हाँ तो फिर मत कह के सुना हो, नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए क्या है ना कि अच्छी बात नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गेस भी तो कर सकते हैं। देखिए एक तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होगा, कल्चरल प्रिजर्वेशन होगा, गुड गवर्नेंस होगा और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में तभी तो इंडिया पीछे आता है जब भूटान आ गया। क्यों? क्योंकि इंडिया में ग्रोथ तो है लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है, लोग कहाँ हैप्पी है बताइए। तो सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट है, सेकंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, थर्ड है कल्चरल प्रिजर्वेशन, वो कंट्री कितना कल्चरली प्रिजर्व्ड है, और फिर चौथा है गुड गवर्नेंस। ये 4 मेजर इंडिकेटर्स है, नहीं है। हाँ, गुड गवर्नेंस। कभी कभी इंडेक्स वगैरह पूछ लेते हैं, चेक करते हैं कि है ना, जैसे आपसे उसका इंडेक्स पूछ सकते हैं, EHDI का पूछ सकते हैं, या फिर जो है ना जो ग्लोबल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स हैं, कितने पिलर्स हैं, पूछ सकते हैं बेसिकली, है ना। देख जिनके केवल 3 या 4 पिलर है ना, तो उनको तो याद रखिए। जिनके 10-12 पिलर हैं तो पॉसिबल नहीं है याद कर पाना, लेकिन जिनके 3 या 4 पिलर हैं तो आपको पूछ सकते हैं कि इसका नाम भी बताना है। फिर मेरे को बताइए, व्हाई आर हाउस होल्ड सर्विस एंड इनफॉर्मल एक्सचेंज ओमिटेड फ्रॉम द ऑफिशियल जीडीपी? जो हाउस होल्ड सर्विस है या फिर इनफॉर्मल एक्सचेंज, जो इनफॉर्मल एक्सचेंज करते रहते हैं ना आपस में, वो ऑफिशियल जीडीपी से उसको हटा दिया जाता है। क्यों? मतलब उसको काउंट नहीं किया जाता, क्यों? एग्जाम्पल नहीं समझे? जैसे मान लें कि मदर घर का पूरा काम कर रही है, खाना बना रही है ना, हमारे पिताजी हाँ अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो भी तो एक ट्यूशन है ना, लेकिन वो जो है जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है, जबकि वही ट्यूशन कोई बाहर वाला पढ़ाएगा वो इंक्लूड होगा। तो ये कुछ पूछा कि ऐसा क्यों किया जाता है, जानते क्यों? क्योंकि दे लैक फॉर्मल मार्केट प्राइस ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती ना, फॉर्मल मार्केट प्राइस ट्रांजेक्शन लैक करते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। इसी को जाता है हाउस होल्ड सर्विस एंड इनफॉर्मल एक्सचेंज। ये है बेसिकली। अब इसमें मान अपने भाई को आप पढ़ा रहे हैं तो ये जीडीपी में थोड़ी इंक्लूड होगा, लेकिन यदि आप प्रॉपर से कोई कोचिंग खोले हैं भी पढ़ा रहे हैं तो जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि सर्विस के अंदर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था कैसा क्यों होता है, क्योंकि जो अपने भाई को आप पढ़ा रहे हैं ना, वो दे आर लैकिंग फॉर्मल मार्केट प्राइस ट्रांजेक्शन। चूँकि उसका ट्रांजेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप कि हमने कितना पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, ये है ना, उसकी क्या वैल्यूज़ है, ये रीज़न है बेसिकली। तो इट इज़ बेसिकली डिफ़िकल्ट टू हैव ए एक्यूरेट वैल्यूशन, डिफ़िकल्टी बेसिकली, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। फिर जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पूछ सकते हैं बेसिकली, जैसे इफ़ अ सेकंड हैंड कार इज रीसोल्ड थ्रू अ डीलर, व्हाई इज द कार्स रीसेल वैल्यू एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीडीपी व्हाइल द डीलर्स कमीशन इज इंक्लूडेड? जैसे मान लो कोई सेकंड हैंड कार सोल्ड की जा रही है, तो वो कार जीडीपी में काउंट नहीं की जाएगी, लेकिन जो डील करवाया है ना उसका कमीशन इंक्लूड किया जाता है जीडीपी में। ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, इसीलिए क्या है ना कि शेयर और बॉन्ड जो है ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते हैं।
लेकिन जो शेयर और बॉन्ड का ब्रोकरी करता है ना, उसका चार्ज इंक्लूड होता है, क्योंकि वो सर्विस दे रहा है ना, आपको समझा रहा है ना कि आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है। तो ये वहाँ से एग्जाम्पल आप लिंक दे सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा यहाँ भी होता है। आपको कहीं अगर सिमिलर एग्जाम्पल मिल रहा है ना, तो आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं। उनको इससे ये पता चलेगा ना कि इसके पास क्लैरिटी ज़्यादा है बेसिकली। हाँ, तो आपको सिमिलर कहीं एग्जाम्पल मिल रहा है ना कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको कि सर ऐसा जैसे यहाँ होता है ना, वैसे यहाँ भी है बेसिकली, तो उनको क्लैरिटी हो जाएगी बेसिकली। ये बताइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। इफ़ द गवर्नमेंट स्लैशेज प्रोडक्ट सब्सिडी while keeping real physical production constant, what happens to the GDP at market price? I repeat, यदि गवर्नमेंट जो है ना प्रोडक्ट सब्सिडी को स्लैश कर देती है, लेकिन जो रियल फिजिकल प्रोडक्शन है ना उसको कांस्टेंट रखती है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कांस्टेंट रहेगी। नहीं, बढ़ेगी। अरे भाई, अगर सब्सिडी को घटा रहा है तो जीडीपी मार्केट प्राइस बढ़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट प्राइस से जीडीपी निकालते हैं तो सब्सिडी को माइनस करते हैं, तो जब वो माइनस हो जाएगा, हट जाएगा, तो जीडीपी तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा ना जी। देखिए, इसे कहते हैं कंसेप्चुअल एरर। मैं आपसे क्या पूछा कि यदि गवर्नमेंट जो है ना स्लैश कर देती है प्रोडक्ट सब्सिडी को, लेकिन जो रियल फिजिकल प्रोडक्शन है उसको कांस्टेंट रख रही है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैंने को क्या बताया था, फैक्टर कॉस्ट यदि आपको निकालना है जीडीपी, तो क्या होता है फार्मूला? इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है और सब्सिडी माइनस होता है। और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि सब्सिडी को हटा दिया गवर्नमेंट ने, तो मतलब क्या होगा यहाँ पे? मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा ना जी। ये गलती नहीं करना है। देखिए, इसे कहते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछना। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया है। हाँ, तो ये गलती नहीं करना है। समझ में नहीं है आपको? हाँ, ये मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको समझ में आया था? हैं? क्वेश्चन क्या पूछा था बताइए मेरे को। क्वेश्चन आपने बोला कि गवर्नमेंट का भी और जो प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी दे रही है वो खत्म कर देती है, और लेकिन जो फिजिकल प्रोडक्शन है उसको कांस्टेंट रखती है, रियल फिजिकल प्रोडक्शन को। तो नहीं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ये बताइए। अब आपको तुरंत फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है कि उसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस है और सब्सिडी माइनस है, और सब्सिडी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हटा दिया है, तब तो मार्केट प्राइस और बढ़ जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे माइनस हो रहा था सब्सिडी। तो जब उसी को हटा देंगे तो बढ़ जाएगा ना जी। कॉमन सेंस की बात है। अब और कांस्टेंट रहेगा। समझ नहीं आपको अब? हाँ, तो ध्यान रखना। देखिए, वो क्वेश्चन बना सकते हैं जी। वैसे थोड़े पूछेंगे कि हमको जीडीपी का डेफिनेशन बताओ। मैंने आपसे पूछा था, लेकिन वो नहीं पूछेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप फ्रेशर नहीं है। आप 4 अटैम्प्ट दिए हैं, मेंस लिखे हुए हैं, आपसे नहीं पूछेगा इतना आसान क्वेश्चन। पूछेगा, लेकिन क्या है ना, आपसे क्वेश्चन बना के पूछेगा। वो थोड़ा सा घुमा के इधर उधर बेसिकली ये चीज़ देखिएगा। हाँ, फिर हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पड़ेगा, ये भी कंसेप्चुअल है। कैन एन इकोनॉमी रजिस्टर पॉजिटिव रियल जीडीपी ग्रोथ वाइल साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग विथ अ नेगेटिव आउटपुट गैप? आई रिपीट, कैन एन इकोनॉमी रजिस्टर पॉजिटिव रियल जीडीपी ग्रोथ वाइल साइमल्टेनियसली ऑपरेटिंग विथ अ नेगेटिव आउटपुट गैप? मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्या एक इकॉनमी जो है ना उसमें रियल जीडीपी ग्रोथ को देखा जा सकता है, जबकि साथ साथ जो है ना उस इकॉनमी में नेगेटिव आउटपुट गैप ज़्यादा है। ये है। लगता है आप क्वेश्चन समझ नहीं पाए, है ना? हो सकता है, कह रही हूँ। क्यों हो जाएगा बताइए? क्योंकि नेगेटिव आउटपुट गैप कब होगी? जब आपका पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा होगा, है ना? मतलब कि आपका एक्चुअल जीडीपी कम है और पोटेंशियल जीडीपी ज़्यादा है। हाँ, तो आप पीछे नेगेटिव चल रहा है, पोटेंशियल ज़्यादा, बट पॉजिटिव रियल तो जीडीपी अपना हाँ, तो फिर पॉजिटिव रियल जीडीपी कैसे होगा फिर, जब यहाँ चीज़ निगेटिव चल रहा है? तो रियल जीडीपी का मतलब क्या कि नॉमिनल और उसके टर्म्स आप कैलकुलेट करेंगे ना, इन्फ्लेशनरी फिगर के टर्म्स। रियल जीडीपी बोल रहे हैं, रियल जीडीपी मतलब हमारा
पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमारा नॉमिनल ज़्यादा था और इन्फ्लेशन कम था। रियल जीडीपी तो मतलब ये दोनों आपस में अलग कंसेप्ट है ना सर, मेरा कंसेप्ट अलग नहीं है, इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि हमारा अगर निगेटिव आउटपुट गैप है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी जो है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि हमारी इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी, ठीक ना, हमारी इकोनॉमी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन आपने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो ग्रो कर रही है 4% से। कि तो क्या हो गया, यहाँ पे 3% निगेटिव हो गया ना। लेकिन ये बताइए, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हम हटाते हैं ना, तो हो सकता है कि जो 3% हमारा कम हुआ है वो पूरा इन्फ्लेशन हो, ऐसे तो हो सकता है। तो आपको ऐसे बताना है रीजन कि देखिए, जब आपको क्लैरिफिकेशन ना मिले ना, तो आप कोई एग्जाम्पल से उनको समझा दीजिए कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ सपोज दैट कि आई हैव एक्सपेक्टेड टू grow our economy at 7% rate annually, but actually we are growing at 4%. So here 3% is a negative output gap, but this 3% can be due to the inflation, that's why we are low. But real GDP is just inflation, so they both can be counterbalance, so it can be positive basically real GDP. आपको ऐसे आंसर देना है, वो समझ जाएगा एग्जामिनर। जो क्या है कभी क्या है ना कि चीज़ें जो है ना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से इतना टाइम भी नहीं देते हो। वो क्या है ना, आपके लिए एक क्वेश्चन के लिए जो है ना ज़्यादातर टाइम नहीं देते हो, जहाँ बीच में फंस गए तो कहने अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बेसिकली। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जो आपको बोलना है ना, पहले सोच समझ लीजिए कि आपको यहाँ तक बोलना है, और इतनी बात में आपको अपनी बात कह देना है बेसिकली। फिर हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कंसेप्चुअल, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। इफ पर्सनल इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू हायर गवर्नमेंट वेलफेयर पे आउट्स इफ पर्सनल इनकम इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू हायर गवर्नमेंट वेलफेयर पे आउट्स, विल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑटोमेटिकली राइज बाय द एग्जैक्ट सेम अमाउंट? ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, मतलब तो क्यों नहीं होगा, रीजन बताइए। मतलब कुछ अमाउंट यहाँ पर किसी और चीज़ में डिडक्ट हो जाए तो फिर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर। कौन से फैक्टर होंगे? प्राइसेस कभी बढ़ गए, फिर हमारा जो जैसे सेव्ड रहेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। आवाज़ क्लीन नहीं आ रही है, फिर बताइए। कह रहे प्राइसेस बढ़ गए, अब आ रही है ना? हाँ, प्राइसेस कभी मार्केट में बढ़ रहे तो जो हमारे पास जो डिस्पोजेबल इनकम है, सेव्ड वाली इनकम है, वो कम होगी। नहीं, प्राइस को सब कांस्टेंट रखिए ना। आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, आपको बस इसमें बताना है। मैं क्वेश्चन क्या पूछा था कि मान लीजिए पर्सनल इनकम इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको वेलफेयर पे आउट किया। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट ने 5,000 पेंशन दे दिया, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट ने आपको 5,000 पेंशन दे दिया है, आपकी सैलरी जो भी हो, गवर्नमेंट ने आपको अलग से 5,000 पेंशन दे दिया है, ठीक है, ताकि आपकी पर्सनल इनकम बढ़ गई ना। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या पर्सनल डिस्पोजल इनकम भी उसी रेट से या फिर उसी अमाउंट से बढ़ेगा ऑटोमेटिकली? कभी सारी चीजें कांस्टेंट है, हाँ। कंडीशन है क्या? हाँ, तो फिर बढ़ जाएगा। नहीं, तब भी ज़रूरी नहीं है। जानते क्यों? मैं बताता हूँ। सोचिए क्यों ऐसा हो सकता है, आप सोच सकते हैं, सोचिए ऐसा क्यों। क्योंकि जानते क्यों? क्योंकि आपको जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी थी, ये बताइए। अभी इंडिया में कितना है टैक्स देने का इनकम? 8 लाख है कि 12 लाख है? 12 लाख है, ठीक है, 12 लाख है। तो मान लीजिए कि आप कमाते हैं, मान लीजिए अभी 11 लाख, ठीक है, आपकी ये पर्सनल इनकम है, मतलब विदाउट पेइंग टैक्स है, और गवर्नमेंट ने आपको 1.5 लाख का पेंशन दे दिया है, तो कितना हो गई अब वो?
12,50,000। अब तो आप टैक्स के ब्रैकेट में आ गए ना, तो अब आपको 2 लाख टैक्स देना पड़ेगा। तो आपकी इनकम कितनी बची है परसेंटेज बिल्कुल 10 लाख है, तो कम हो गया है ना। तो मतलब है क्वेश्चन यहाँ पे क्या चेक कर रहा था आपका कि आप जो है ना टैक्स के ब्रैकेट में आ सकते हैं। अगर मतलब जो है ना अगर आपको गवर्नमेंट ने वेलफेयर दे दिया है तो आप टैक्स के ब्रैकेट में आ सकते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ पर्सनल इनकम इंक्रीजेज ड्यू टू हायर गवर्नमेंट वेलफेयर पे आउट विल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑटोमेटिकली राइज बाय द एग्जैक्ट सेम अमाउंट। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि आप पहले टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, ठीक है। आपकी इनकम जो भी थी, मान लीजिए गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख का टैक्स दे दिया है, 2 लाख का पेंशन दे दिया है, तो आपकी इनकम जो है ना उस महीने की या फिर उस साल की हो गई है 13 लाख है। तो आप जो है ना आप आ गए ना टैक्स के दायरे में, तो आपको 2 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। तो आप जो पहले इनकम थी ना आप उससे भी कम हो गया आपका आप बेसिकली। तभी तो जो है ना ये जो है ना जो भी नया पे कमीशन आया है उसमें लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सैलरी तो बढ़ा रही है, पर क्या है ना कि जो टैक्स का ब्रैकेट रखी है ना उसमें हम टैक्स के अंदर आ जा रहे हैं, तो बात एक ही पड़ रही है। तभी तो आप देखेंगे उसमें विरोध चल रहा था 8th पे कमीशन में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना 12 लाख का ब्रैकेट रखी है, और जो पे कमीशन बनाया है 8th पे कमीशन, वो क्या है ना कि वो बढ़ा दिया है सैलरी, तो सैलरी भी बढ़ गई और प्लस टैक्स का ब्रैकेट भी है, तो आदमी टैक्स के ब्रैकेट में आ जा रहा है बेसिकली। बहुत लोग ऐसा आ गए हैं जिसका विरोध कर रहे हैं। बहुत लोग की बात एक ही है, जो पहले था उतना ही है बेसिकली, बढ़ा गया है, कुछ नहीं बढ़ा है। तो ये कहना चाहता है बेसिकली क्वेश्चन ये है, चूँकि पर्सनल इनकम बढ़ा है ना, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी बढ़ा है। पर्सनल इनकम मतलब क्यों उसमें अभी टैक्स आपको देना पड़ेगा, इसलिए मैंने पर्सनल इनकम वर्ड यूज़ किया था। मेरे को बताया था पहले कि आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यदि पर्सनल इनकम बढ़ता है जो ड्यू टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम ये फिर पे आउट्स, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आपको तुरंत सोचना चाहिए कि अभी हमने टैक्स पे नहीं किया है, तो मैं टैक्स के दायरे में तो आ सकती हूँ ना। ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि जब पर्सनल इनकम की बात करेगा तो मतलब को ध्यान रखना कि उसमें टैक्स अभी पे हमने नहीं किया है, और जब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पूछेगा मतलब टैक्स हमने पे कर दिया है, तो अब जो पैसा मेरे पास आएगा ना वो अब मेरा ही होगा। लेकिन पर्सनल इनकम में हमारा पूरा पैसा नहीं है, अभी पूरा पैसा नहीं है, ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो मेरे हिसाब से अब आप आंसर दे पाएंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो हो ही गई होगी, है ना। देखिए आंसर बहुत शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, और आप केवल इसको टारगेट मत बनाइए। ये ठीक है, आपके पास एक रेफरेंस है ये जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन जो मेन है ना कि आपको फ्यूचर में जो भी इंटरव्यू देंगे ना, आप किसी भी स्टेट PCS का या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, हर जगह जो है ना आपकी क्लियरिटी वहाँ काम आएगी। इसलिए कहना कि इसको जो है ना अच्छे से जो है ना अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और जो है वो आएगा, क्योंकि अच्छा टाइम था इंटरव्यू तैयारी करने का।